हर हर मोदी, 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 भारत माता की, भारत माता की। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಹರ ಹರ ಮೋದಿ, ಹರ ಹರ ಮೋದಿ, ಹರ ಹರ ಮೋದಿ, ಮೋದಿ 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 ಮೋದಿ, हर हर मोदी, 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 मोदी मोदी। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी। ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ, ಸಾಧನೆಯ ಸರದಾರ, ಸಾಧಿಸುವ ಛಲಗಾರ, ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ಕನಸುಗಾರ, ನೇರ ನಡೆಯ ದಿಟ್ಟ ನುಡಿಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರನ್ನು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಇದೀಗ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾರತ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ರ್ಯಾಲಿಯ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಾವೇಶದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಭಾವಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು ಆದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂಥ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. मैं आपको हार्दिक माननीय नरेंद्र मोदी जी को
आप सबके तरफ से कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಜಗಳಗಳು ಬರಲಾರದಂತೆ ನಿಮಗೆ ವಚನಬದ್ಧರಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ತರುವಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ರವರು ಶಾಲು ಹಾಕಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೇಟಾ ತೊಡಿಸಿ, ಶಾಸಕರುಗಳು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಬೆತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ, ಬಸ್ತಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಣೈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ನರ್ಮದಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ 182 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಇವರ ಏಕತಾ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಲೋಹ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನದ ಲೋಹಾರ್ಪಣೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೋಹ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಂಚಾಲಕರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯು ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೇಸಾಯ ಕೃಷಿಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅವರು ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಲೋಹವನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಇವರ ಲೋಹದ ಏಕತಾ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಲೋಹವನ್ನು ಇದೀಗ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಗುಜರಾತ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮೋ ಮಂತ್ರದ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಶಂಖನಾದ ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಂಖವನ್ನು ಅಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿನ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಅಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಶಂಖವನ್ನಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ಮತ್ತು ಜಾಗೋ ಭಾರತ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆಯವರು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಶಂಖವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮೋ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. भारत माता की, भारत माता की। ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೋಕೆದ नमस्कार। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, श्री अनंत कुमार, श्री येडियुरप्पा जी, जी सदानंद जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए
प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ महीने पहले इसी मैदान में मैं आया था, लेकिन वक्त वक्त की बात है। उस दिन मैदान भरता नहीं था और आज मैदान में जगह नहीं है। एयरपोर्ट से यहां तक रास्ते के दोनों तरफ मैंने ह्यूमन वॉल देखा है। आज मैंगलोर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने आज जो मुझे प्यार दिया है, आपने मुझे जीत लिया है। आपने मुझे अपना बना दिया है। मैंगलोर के साथ और इस पूरे क्षेत्र के साथ मेरा संबंध जरूर आता था, लेकिन उसका मूल कारण था सुपारी, अड़िके। जब जब यहां किसानों पर संकट आता था, अड़िके के दाम गिर जाते थे, तो एक डेलीगेशन जरूर गुजरात आता था और वो कहते थे, मोदी जी कुछ आप गुजरात में करो ताकि हमारी सुपारी बिक जाए, हमारा किसान बच जाए। और भाइयों बहनों, यहां के भाजपा के नेता मांग करे और मैं मानूं नहीं, ये कैसे हो सकता है। और हम हर बार जो भी मदद कर सकते हैं करते रहे हैं, लेकिन भाइयों बहनों, मदद से गाड़ी कितने दिन चल सकती है। एक स्थायी सॉल्यूशन चाहिए, ऐसी नीतियां चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए ताकि मेरे यहां के किसान को हर सीजन के बाद अड़िके का क्या होगा, अड़िके का क्या होगा, किसान बचेगा कि नहीं बचेगा, यही उनको अगर टेंशन रहता है तो भाइयों बहनों, हमारा किसान कहां जाएगा। और इसलिए मैं आपको वादा करने आया हूं, भाइयों बहनों, हमारे देश में मूलभूत रूप से कृषि क्षेत्र के संबंध में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्राथमिकताएं नहीं है। प्रायोरिटी किसकी हो, कैसे हो। एक राज्य एक तरफ जाता है, दूसरा राज्य दूसरे तरफ जाता है, और दिल्ली के लोग राज्यों के आंकड़े इकट्ठे करने के सिवाय कुछ करते नहीं है। भाइयों बहनों, अगर भारत कृषि प्रधान देश है, अगर भारत गांवों का देश है, अगर भारत के गांवों को समृद्ध बनाएंगे, अगर हमें देश के अर्थतंत्र को गति देनी है, तो गांव के लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ना चाहिए। अगर गांव के लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है
अगर गांव के लोगों की खरीद शक्ति बढ़ती है तभी इकोनॉमी तेज गति से चलती है। लेकिन गांव के व्यक्ति का परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगा अगर उसके जेब में पैसे ही नहीं है? तो बेचारा खरीदी क्या करेगा? और इसलिए गांव हो, गरीब हो, किसान हो, ग्रामीण कामदार हो, गांव के छोटे छोटे कारीगर हो, उनकी आर्थिक उन्नति पर योजनाबद्ध रूप से बल देने की आवश्यकता होती है। और तभी गांव खड़ा होता है, तभी गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है। और जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तभी तो शहर में चेतना आती है, तभी तो शहर में जान आता है, तभी तो शहर आर्थिक रूप से प्रगति कर पाता है। और इसलिए विकास की उन मूलभूत बातों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमारे यहां का किसान पेपर की खेती करता है, काली मिर्च, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? मेणतू, करी मेणतू, करी मेणसू। भाइयों बहनों, कभी आपने सोचा था मेरे किसानों ने कि आपके करी मेणसू का क्या उपयोग होगा? कभी सोचा था? आपको तो इतना ही पता था ना, कोई मिर्च मसाले में काम आता है, दवाइयों में काम आता है। ये कांग्रेस वालों की कमाल देखो, इन्होंने इसका उपयोग पार्लियामेंट में कर दिया। पेपर स्प्रे कर दिया, पूरी संसद खांसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग आप पार्टी ज्वाइन कर लिया। पूरी पार्लियामेंट खांस रही थी, आंखों से पानी निकल रहा था। मैंगलोर के इस इलाके के किसानों ने कभी सोचा नहीं होगा कि सुपारी के मुद्दे पर तो पार्लियामेंट को समय नहीं है, लेकिन काली मिर्च उनके काम आ गई, ये तो उनके ध्यान में आया होगा। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी इतने सालों से लोगों की आंख में धूल झोंकती थी। अब कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट से मिर्ची झोंकने का काम आरंभ किया है। वो आंख में अब मिर्ची छिड़कना शुरू किया है। आप रोते रहो, उनके पाप देख न पाओ, उनके भ्रष्टाचार को समझ न पाओ, उनका कारोबार चलता रहे, इसी दिशा में भाइयों बहनों कांग्रेस पार्टी देश को तबाह कर चुकी है। लेकिन अगर कोई उनको ललकारता है तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। कोई उनका जवाब मांगता है तो जवाब देने की बात छोड़ो, उसको जेल भेजने के कारनामे करते हैं। जिस प्रकार से संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, हर नेता के पीछे सीबीआई लगा देते हैं और आए दिन सीबीआई का डर दिखाते रहते हैं। उनको लगता था बाकी नेता जैसे डर जाते हैं, वैसे मोदी भी सीबीआई से कांप जाएगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था
उन्होंने रॉन्ग नंबर लगा दिया। लेने के देने पड़ जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। और यहां भी अभी तो नई नई सरकार बनी है और कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ता अगर जनता की आवाज को बुलंद करें तो उनको भी भिन्न भिन्न धाराओं में फंसाने के कारनामे चल रहे हैं। भांति भांति के एक्ट लगाए जा रहे हैं और उनकी आवाज बंद करने की कोशिश हो रही है। अभी केंद्र के नेता यहां आए थे, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें सुना के गए और मैं मानता हूं कि आपको भरपूर मनोरंजन मिला होगा 2 दिन। वो ये कहे कि कांग्रेस पार्टी में कोई हाई कमांड होता ही नहीं है, तो फिर कमांड कौन करता है, कहां से होता है? हिंदुस्तान की जनता के आंख में कब तक मिर्ची झोंकते रहोगे? ये जनता है, सब कुछ जानती है। आप गुमराह करने के लिए कितनी बातें क्यों न बताओ, लेकिन सामान्य मानवी भली भांति इस बातों को जानता है कि आपके कारनामे क्या है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र का नामो निशान नहीं है। लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है। लोकतांत्रिक परंपराओं को निभाना उनके स्वभाव में नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर उसका एक प्रमुख राजनीतिक दल लोकतंत्र में विश्वास न करता हो, लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह न करता हो, डंडे के जोर पर सारी दुनिया चलाता हो, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को हम न कल्पना कर सकें इतना खामियाजा भुगतने की नौबत आ सकती है। इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस की झूठी बातों को समझने की आवश्यकता है। उनके नारे, उनके वादे ये गुमराह करने वाले हैं। देश की क्या हालत करके रखी है। आर्थिक रूप से देश दिवालियेपन में डूब चुका है। नौजवान बेरोजगार हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, माताएं बहनें अपने शील की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए तरस रही है। बूढ़े मां बाप दवाई के बिना जिंदगी और मौत के बीच गुजारा कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के 60 साल के इतिहास में ऐसा दशक कभी इस देश ने देखा नहीं है जो ये डेकेड हमने देखा है, ये दशक देखा है जिसने हिंदुस्तान को हर प्रकार से नीचे गिराया है। देश की तिजोरी साफ कर दी है, गरीब महंगाई में मर रहा है और पहली बार एक सरकार
भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त हो, चारों तरफ हर दिन भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हो और सुप्रीम कोर्ट बार बार उनके सर पे डंडे मारती हो, उसके बावजूद भी न इनको देश की परवाह है, न लाज है, न शर्म है, न जनता का भला करने की रत्ती भर भी इच्छा है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज कांग्रेस पार्टी देश के लिए बोझ बन गई है। इस बोझ से मुक्त होना ही हिंदुस्तान को विकास और प्रगति की गारंटी देता है। और तभी मैं कहने आया हूं, कांग्रेस मुक्त भारत ऐसा देश, 125 करोड़ का देश, न नेता है, न नीति है और न ही कोई नियत है। भाइयों बहनों, नेता न हो, नीति न हो, नियत न हो तो ये देश कौन बचाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, पानी पीना। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी को अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं करना है। यह हमारा मंगलोर, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंगलोर के लोगों में ऐसी क्या ताकत है कि जिन्होंने देश को इतनी बैंक दी। कैनरा बैंक, कर्नाटका बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक। भाइयों बहनों, हमारा और आपका बड़ा कुछ विशेष नाता है। आप बैंक खोलते हो और हम बैंक की तिजोरी भरते हैं, गुजरात वाले। आप बैंक खोलते हो, हम खाते खोलते हैं। भाइयों बहनों, इस आने वाले दिनों में विकास की रूपरेखा क्या हो, दुनिया के सब देश जिनको समुद्री तट मिलता है, वे देश वैश्विक दृष्टि से ताकतवर बनते हैं। विश्व व्यापार की सुविधा बढ़ती है। ग्लोबल एरा में पोजीशनिंग के लिए बहुत बड़ा अवसर मिलता है। लेकिन इसके लिए उन देश के चलाने वालों के पास दृष्टि होनी चाहिए। हमारे जो कोस्टल स्टेट्स हैं, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके विकास का एक विशेष मॉडल लाने की आवश्यकता है। इतने बड़े देश को एक ही चाबी से नहीं चलाया जा सकता। टेलर मेड एक ही सॉल्यूशन से इतने बड़े देश का विकास नहीं हो सकता है। और इसलिए हर राज्यों की रुचि, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार उनकी शक्ति क्या है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनके सपने कैसे हैं, उनके संसाधन कैसे हैं,
उन सारी बातों का अंदाज करके विकास की रणनीति तय होनी चाहिए। भाइयों बहनों, क्यों ना हमारे सभी कोस्टल स्टेट, उनका स्वतंत्र रूप से विकास की चर्चा क्यों ना हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सागरमाला प्रोजेक्ट की कल्पना की थी। अगर वाजपेयी जी की 2004 में सरकार बनती तो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत हिंदुस्तान के सभी तटीय राज्यों को, कोस्टल स्टेट को, सभी बंदरों को एक साथ जोड़ करके विकास की एक नई अवधारणा खड़ी करते। मैं आज जब मैंगलोर में आया हूं तब भाइयों बहनों मैं आपको विश्वास दिखाने आया हूं, और आप मान के चलिए हम वादे नहीं इरादे लेकर के आए हैं। भाइयों बहनों, हम इरादा लेकर के काम करते हैं। पोर्ट डेवलपमेंट समय की मांग है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट के मॉडल को विकसित करना चाहिए। सिर्फ पोर्ट डेवलपमेंट एक बहुत सीमित सोच है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट यही हमारे तटीय राज्यों को एक नई आर्थिक गति दे सकता है। और जब मैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट कहता हूं तो मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता देता हूं जहां हमारे तटीय क्षेत्रों को रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, उत्तम से उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर बंदरों के साथ जुड़ा हुआ हो। इतना ही नहीं, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क हो, वेयर हाउसिंग का नेटवर्क हो, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सामुद्रिक जीवन के साथ जीने वाले लोगों के लिए जिस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चाहिए वैसी इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए। जो समुद्र के साथ खेलता है, बंदरों की मैनेजमेंट का विषय हो, बंदरों के ट्रांसपोर्टेशन का विषय हो, बंदरों पर आने वाले जहाजों को रिपेयरिंग का काम हो, सारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उस प्रकार से हो ताकि बंदरीय क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले। भाइयों बहनों, पूरे विश्व में फिश का बहुत बड़ा मार्केट है, वैश्विक मार्केट है। क्यों न हम मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भरे हुए आधुनिक से आधुनिक फिश हार्बर क्यों न बनाए। हमारे मछुआरे भाइयों बहनों को अच्छे से अच्छी रोजगारी मिले, अच्छी उनकी आय बढ़े, वे भी आधुनिक रूप से फिशिंग के क्षेत्र में पदार्पण करें। ये व्यवस्थाएं क्यों विकसित नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, मीनूगारा यानी मछुआरे को मीनूगारा कहते हैं। ये जो फिशिंग करने वाले लोग हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है कि आज हमारा मछुआरा फिशिंग के लिए जाता है, बेचारा मिट्टी का तेल जलाएगा, डीजल जलाएगा, बोट लेकर के घूमता रहता है, और कहीं पर कैच मिल जाए, कैच को ढूंढता रहता है, कैच मिल जाए फिर लेकर के वापस आता है। आज हम हमारे मछुआरों को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से एग्जैक्ट एड्रेस दे सकते हैं कि इस दिशा में जाओ, यहां पर कैच पड़ा है, तुम्हें ज्यादा इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ये प्रयोग मैंने गुजरात में किया है, सफलतापूर्वक किया है, और मेरे मछुआरों का समय बर्बाद नहीं होता है। लेकिन भाइयों बहनों, मोगवीरा मेरी आज दोनों काम हो रहे हैं।
कन्नड़ भाषा की ट्रेनिंग भी चल रही है। भाइयों बहनों, हमारा ये जो मौका भी रहा है उसको एम्पावर करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, इनके दिमाग में विकास की नई अवधारणाएं नहीं है। कोस्टल डेवलपमेंट के लिए एक होलिस्टिक प्लान के साथ हिंदुस्तान के सभी तटीय राज्यों के लिए एक स्पेशल अटेंशन देकर के विकास की व्यूह रचना के हम पक्ष में है। और मैं बताता हूं भाइयों बहनों, इससे लाभ होने वाला है। आप देखिए, ये हमारा दक्षिण कर्नाटका एक प्रकार से बहुत तेजी से अर्बनाइज हो रहा है। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हमारी सरकारों ने, दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने अर्बनाइजेशन को संकट माना, एक प्रॉब्लम माना। समय की मांग है कि हम अर्बनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी माने, एक अवसर माने और अवसर मान करके विकास की योजनाएं करें। क्यों ना हम ट्विन सिटी कंसेप्ट को डेवलप करें, क्यों ना देश में नए शहरों का निर्माण करें। पोर्ट सिटी हो, मेडी सिटी हो, स्पोर्ट सिटी हो, फाइनेंस सिटी हो, नॉलेज सिटी हो, एक नई विधा 21वीं सदी का हिंदुस्तान कैसा हो, इन सपनों को पार करने की दिशा में हर राज्य को हम प्रेरित करें, नई योजनाओं को लेकर के आए, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भाइयों बहनों, शहरों के विकास की कल्पनाओं को भी हमने पुरानी बातों से बाहर आना पड़ेगा। पहले शहर का विकास यानी रोड बन गए, पानी का नल लग गया, ड्रेनेज हो गया, एयरपोर्ट आ गया, इसी से बात चलती है। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर का रूप बदलना होगा। हमें हमारे नागरिकों को सिर्फ रेल नेटवर्क देंगे चलने वाला नहीं है, रोड नेटवर्क देंगे चलने वाला नहीं है, सिर्फ एयरपोर्ट दे देंगे उससे चलने वाला नहीं है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज चाहिए। और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज होना है तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर बल देना पड़ेगा, वाटर ग्रिड पर बल देना पड़ेगा, गैस ग्रिड पर सोचना पड़ेगा। हमने विकास के लिए एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल को लेकर के हमारे शहर की सुविधाओं को, वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज कैसे आए, उस पर बल देकर के आगे बढ़ना होगा। मैं हैरान हूं, कर्नाटक के पास बिजली में करीब 20-22% की कमी है। बिजली रेगुलर मिलती है आपको? 24 आवर बिजली मिलती है। अब आपका अंधेरा जो दूर नहीं कर सके, वो आपकी जिंदगी में उजाला कहां से लाएंगे? ये मुश्किल काम नहीं है मित्रों। गुजरात के पास हजारों मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा पड़ी है हमारे पास। कर्नाटक में लेने की ताकत नहीं है। और इससे बुरा क्या, और लेने को भी तैयार हो जाए तो भारत सरकार ने ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क खड़ा नहीं किया है कि जिसके कारण जहां सरप्लस बिजली है, वहां से जहां बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचा सके। भाइयों बहनों, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह बल दिया जाए तो आज मेरे देश को अंधेरे में रहने की नौबत नहीं आएगी। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और ये काम हो सकते हैं। और भाइयों बहनों,
यही तो हमारा इरादा है, यही तो हमारा नेक इरादा है, यही तो हमारा पक्का इरादा है कि हमें बदलाव लाना है, हमें लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उस पर बल दे करके हम नई नई ऊंचाइयों को पार करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, हमारा कर्नाटका आईटी को लेकर के सारे दुनिया में मशहूर हुआ। हमारे 18, 20 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवानों ने उंगलियों पर दुनिया को नचाने की ताकत पैदा कर दी। कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते हैं, पूरा विश्व नाचने लग जाए, यह सामर्थ्य हमारे नौजवानों में है। एक जमाना था हम लोग माउस चरमर थे, हम स्नेक चरमर थे, आज हम माउस चरमर बन गए। कंप्यूटर का माउस चलाते हैं, दुनिया को डुलाते हैं, यह ताकत हमने पैदा की। लेकिन भाइयों बहनों, यह सोचने की आवश्यकता है, हम दुनिया की तुलना में कहां खड़े हैं। आप देखिए, आईटी में हमारी इतनी ताकत थी, लेकिन सही नीतियों के अभाव में, सही सोच के अभाव में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो बल देना चाहिए वो हमारी प्राथमिकता नहीं होने के कारण आईटी सेक्टर में एक ठहराव आ गया, स्टैग्नेंसी आ गई। एक प्रकार से हम लो एंड में ही टिके हुए हैं। रोजगार मिल जाता है, कमाई कर लेते, चलता है। हिंदुस्तान के लिए आवश्यकता है। और जब मैं कर्नाटक की धरती पर आया हूं, मैं कर्नाटक के नौजवानों को आह्वान करता हूं, ये लो एंड आईटी लंबे अरसे तक दुनिया में हमारी जगह नहीं बनाएगी। हमारे लिए समय की मांग है कि हम हाई एंड की ओर आगे बढ़े। कभी सोचो, ये सॉफ्टवेयर, ये सारी दुनिया की चीजें, कोई गूगल की बात करे, गूगल हमारे देश में क्यों ना हो, माइक्रोसॉफ्ट हमारे देश में क्यों ना हो, क्यों हमारे नौजवान हाई एंड टेक्नोलॉजी की दिशा में क्यों ना बढ़े। और इसलिए भाइयों बहनों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन सेंटर्स, इनोवेशन, रिसर्च, हमारे नौजवानों को अवसर देने की आवश्यकता है। और अगर हम अवसर देंगे, अगर हम ये आईटी सर्विसिंग में ही रह गए, कॉल सेंटर चलाते रह गए, हम आउटसोर्स किए हुए जॉब वर्क करते रह गए, तो समय आएगा हम इस पूरे क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। इस गंभीरता को समझना चाहिए और लो एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारोबार से हाई एंड की तरफ आगे बढ़ने की दिशा में हम सपना देखते हैं। और मैं नौजवानों को विश्वास देता हूं, मैं वो बदली हुई सोच वाला इंसान हूं। मैं आपके भाग्य को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी का भी भरपूर उपयोग क्या हो, उस दिशा में सोचना चाहता हूं। हमारी ये 21वीं सदी की बात जब करें, टेक्नोलॉजी के बिना जीवन नहीं है भाइयों। आईटी, बीटी, ईटी, नैनो ऐसे क्षेत्र हैं जो जीवन पर छा जाने वाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक साइंस, ये सारी बातें जीवन पूरा बदल देने वाली है। समय रहते हुए हम इसमें अपनी जगह बना दें, हमारे यूथ जो टैलेंट है उसकी दिशा में हम काम करें। भाइयों बहनों, कुल मिलाकर के हमारी मीडियोकर सोच के कारण कुल मिला के हमारी मीडियोकर सोच के कारण हमारी हर चीज में हम लीड नहीं कर पा रहे हैं।
अब देखिए, हमारा देश विदेशों से कच्चा डायमंड लाता है, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं और फिर हम वापिस बेचते हैं। हम टैलेंट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लेबर एक्सपोर्ट करते हैं। जब तक हम लेबर प्लस टैलेंट को एक्सपोर्ट नहीं करते, तब तक हम वैल्यू एडिशन करके दुनिया के हम ज्यादा कमाई नहीं कर सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत सरकार की नीतियां क्या होनी चाहिए? क्या हमने सिर्फ डायमंड का कटिंग और पॉलिशिंग मजदूरी करते रहना है, कि हम ज्वेलरी की दुनिया में अपना डंडा जमाएं, हम जेम्स एंड ज्वेलरी में अपनी जगह बनाएं, हमारे नौजवानों के कौशल्य का उपयोग करें और दुनिया में जेम्स एंड ज्वेलरी के मार्केट को कब्जा करें? ये सिर्फ कटिंग और पॉलिशिंग की मजदूरी वहां पर अटकने से दुनिया चलने वाली नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं, ये लो एंड सोच है, उसको हाई एंड एक्टिविटी की तरफ ले जाने की जरूरत है। भाइयों बहनों, टूरिज्म एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इतना बड़ा देश, विविधताओं से भरा हुआ देश, दुनिया का कोई टूरिस्ट आए, एक डिस्ट्रिक्ट में जाए ना, तो महीने भर देखता ही रह जाएगा, फिर भी देखना पूरा नहीं होगा, इतनी ताकत हमारे पास पड़ी है। लेकिन हमने देखा है, हिंदुस्तान में टूरिस्ट कौन आता है? लो कॉस्ट टूरिस्ट आता है, हाई बल्क टूरिस्ट आता है। संख्या में तो ज्यादा आते हैं, लेकिन रुपये खर्चने की ताकत नहीं होती है। ऑटो रिक्शा में जाने की हिम्मत नहीं है, वो पैडल रिक्शा पे चला जाता है, रुपये खर्च नहीं करता है। अगर हम हमारे टूरिज्म को अगर उस ऊंचाई पर ले जाने पर सोचें कि हम ये लो कॉस्ट टूरिस्ट, हाई बल्क टूरिस्ट, उसके बजाय ये चलता रहे, उसको बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तान में हाई कॉस्ट टूरिस्ट को कैसे लाएं? दुनिया के समृद्धि वाले लोग हिंदुस्तान देखने के लिए प्रेरित कैसे हो? उनको लाने के लिए हमारे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारा अप्रोच क्या हो? ये बदलाव लाने की आवश्यकता है। और तभी जाकर के हम सच्चे अर्थ में टूरिज्म सेक्टर में भी दुनिया में अपना नाम कमा सकते हैं। भाइयों बहनों, हम कॉटन ग्रोवर कंट्री है, एक प्रकार से हम कॉटन प्रोडक्ट करते हैं। टेक्सटाइल की दुनिया में हिंदुस्तान का नाम हुआ करता था। ढाका का मलमल एक जमाने में जब भारत एक था, विश्व में उसकी गिनती होती थी। लेकिन भाइयों बहनों, क्या कारण है कि रेडीमेड गारमेंट में छोटे छोटे देश, कोरिया हो, ताइवान हो, बांग्लादेश हो, छोटे छोटे देश हमसे आगे निकल गए। पूरे विश्व में रेडीमेड गारमेंट का मार्केट पड़ा हुआ है, लेकिन हम उस दिशा में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? हमारी सारी सोच वो मीडियोकर होने के कारण। हम छोटे छोटे कपड़े बना लेते हैं, थोड़ा बहुत बिक गया। क्यों ना हमारा देश जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मार्केट हमारा एस्पिरेशन, इस मिजाज से अगर हम उस दिशा में चले तो हम आर्थिक रूप से भी एक बहुत बड़ा बदलाव। और रेडीमेड गारमेंट का क्षेत्र ऐसा है, टूरिज्म का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को रोजगार मिलता है, गरीब से गरीब व्यक्ति उस काम को कर सकता है। लेकिन हमारी ये मीडियोकर सोच ने एक नई ऊंचाई पर देश को ले जाने के लिए जिस ताकत के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ने का प्रयास नहीं किया है। भाइयों बहनों, देश का नौजवान बेरोजगार है। हमारे देश को, नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप? जरा पूरी ताकत से बोलो तो मैं पूछूं। जवाब देंगे? सबके सब जवाब देंगे? 2009 के पार्लियामेंट में इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोजगार मिला?
जरा पूरी ताकत से बोलो ना, रोजगार मिला, रोजगार मिला। ये कांग्रेस ने वादा खिलाफी की कि नहीं की? ये उनके नेता यहां आए थे, उनको जवाब देना चाहिए था, नहीं दिया ना चाहिए था? जवाब दिया? वो इतने अहंकार में भरे पड़े हैं कि वो जनता को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मित्रों, उन्होंने वादा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, हिंदुस्तान के हर परिवार से एक नौजवान को रोजगार देंगे, लेकिन वो वादा निभाया नहीं। इतना ही नहीं भाइयों बहनों, जब एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी का नेतृत्व था, 6 साल के भीतर भीतर 6 करोड़ 27 लाख लोगों को रोजगार मिला था। 6 करोड़ 27 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया था। और ये यूपीए सरकार आई, उसने क्या किया? 2009 से 2014 तक उन्होंने सिर्फ 27 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 27 लाख लोगों को। भाइयों बहनों, देश के नौजवान को अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो जाएगा कहां? अगर हिंदुस्तान को हमने आगे बढ़ाना है तो हमारा ध्यान हमारे नौजवान पर केंद्रित करना होगा। हमारे नौजवान को रोजगार मिले, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हिंदुस्तान के 65% नौजवान 35 से कम आयु के हैं। दुनिया का ये सबसे नौजवान देश है। ये करोड़ों करोड़ों नौजवानों के हाथ में अगर हुनर दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए, तो हिंदुस्तान का भविष्य बदल सकते हैं हमारे नौजवान। और इसके लिए स्किल डेवलपमेंट पे बल देना चाहिए। दिल्ली सरकार स्किल डेवलपमेंट की बातें करती हैं, 10 साल हो गए, स्किल डेवलपमेंट का उनके पास कोई मॉडल नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई योजना नहीं है। अगर हमारे नौजवानों के पास हुनर नहीं होगा तो रोजी रोटी कहां से कमाएगा? और इसलिए भाइयों बहनों, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट के मिशन को लेकर के आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक सरकार को इतनी बार लताड़ा नहीं होगा जितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने ये दिल्ली की और सरकार को और कांग्रेस की सरकारों को लताड़ा है। आए दिन दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से डंडा पड़ता है। किसी न किसी भ्रष्टाचार के काम में दिल्ली सरकार के लोग डूबे हुए हैं। भाइयों बहनों, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सकता है। और ये कांग्रेस पार्टी के नेता, ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है। जब तक हम कांग्रेस से मुक्ति नहीं पाते, भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, भारत के विकास के लिए मैं आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे साथ कुछ नारे बोलेंगे आप? पूरी ताकत से बोलेंगे। देखिए, 2014 का चुनाव यह सिर्फ किसी को सत्ता पे बिठाने का चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव एक नई आशा लेकर के आया है, एक नया भरोसा लेकर के आया है, एक नया उमंग लेकर के आया है। और इसलिए भाइयों बहनों, 2014 के बाद हिंदुस्तान एक नई ऊंचाइयों पर जाने का प्रारंभ कर देगा। इस विश्वास के साथ इस चुनाव के मैदान में हमें उतरना है। और मुझे भी भाइयों बहनों,
व्यक्ति से बड़ा दल होता है, दल से बड़ा देश होता है। और इसलिए हमें इस चुनाव देश के लिए लड़ना है। इस चुनाव में देश के लिए वोट करना है, न किसी व्यक्ति के लिए करना है, न किसी दल के लिए करना है। इस बार का चुनाव देश के लिए वोट करना है भाइयों। और इसलिए मैं नारा बुलाता हूं, आप मुझे जवाब में बोलेंगे वोट फॉर इंडिया। दोनों मुट्ठी बंद करके आप लोग पूरी ताकत से बोलेंगे वोट फॉर इंडिया। वंशवाद से मुक्ति के लिए, वंशवाद से मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, रहने के लिए घर के लिए, खाने के लिए अन्न के लिए, बीमार को दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशाली भारत के लिए, एकता अखंडता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुशासन को पाने के लिए, देश के विकास के लिए। भाइयों बहनों, देश के विकास के लिए वोट देना है। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ के विकास की राजनीति के रास्ते पर चलना है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आपका समर्थन चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैंने पहले ही कहा, आज आपने इतना प्यार दिया है, आपने मुझे जीत लिया है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलो भाइयों, वंदे 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 वंदे। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಜಿಯವರು बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, हर हर मोदी, हर हर मोदी, बोलो भारत माता की, हर हर मोदी, हर हर मोदी. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜೀವ್ ಮಠಂದೂರು ಇವರಿಂದ. ಆದರಣೀಯ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಸದರೇ, ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಬೋರ್ಗರೆದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಂಥ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪ್ರಧಾನಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರನ್ನು ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ BJP ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಸದರು ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ BJPಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂತ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಜಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾಜಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಂತ ಸತೀಶ್ ಜಿ ಅವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಹಾಸದರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದಿನ ಭಾವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರಿಗೂ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ BJPಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, KMF, ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಮೂಲ್ಕಿ, ಗುರುಪುರ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ನಾನು ಈ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು